Hello everyone. As usual, you know that we are on chapter 1st of bio of class 12th, and now we read about events in sexual reproduction. And in our further videos, we make the difference between sexual and asexual, and we read about the different mode of asexual reproduction. In our last video, we read that events in sexual reproduction, there are 3 events in sexual reproduction: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. In pre-fertilization, we discussed about the gametogenesis. What is the process gametogenesis? The formation of gamete, the production of gamete, the process in which gamete form is known as gametogenesis. Under gametogenesis, we read the following topics: sexuality in organism, a unisexual organism, bisexual organism, monoecious and dioecious. We make difference between them, and what is monoecious, what is dioecious, ये भी हम पढ़ चुके हैं. Now second, the cell division along during gamete formation. Gamete is always haploid. We know that gamete form produced from parents. Parents body is diploid. Parent have generally in their body 2 types of cell presence. One is somatic and second is generative. Somatic, all are made up of all have diploid chromosomes. सब में diploid chromosomes होता है 2n, and generative cell, only generative cell या reproductive cell have ability to form the gamete, और वही meiosis division से haploid gamete को बनाते हैं. And then we discussed about the gamete transfer. अलग अलग तरीके का मोड gamete transfer का किया था. When gamete fuse together, when male gamete and female gamete fuse together, they form zygote. Male gamete haploid and female gamete haploid. Haploid male gamete, haploid female gamete fuse together and form diploid zygote. इसी टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इफ फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक आउटसाइड द बॉडी इज नॉन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. if the fusion take place inside the body is known as internal fertilization. If the gametes fuse inside the body, inside the female body, is known as internal fertilization. If it fuse external environment, it is known as external fertilization. Then we read about the parthenogenesis. What is parthenogenesis? A process in which the female gamete develop into young one without fertilization. यह कह सकते हैं the development of female gamete without fertilization is known as parthenogenesis. या formation of new organism without fertilization is known as parthenogenesis, which is very important. अच्छा, इसका importance भी है. parthenogenesis का importance क्या है? important ये है कि इट सपोर्ट द क्रोमोसोमल थ्योरी इन इनहेरिटेंस. और कई हम प्लांट्स उगा सकते हैं बिना बीज के फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सीडलेस फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल पैराथिनोजेनेसिस. ओके, तो टुडे वी आर ऑन द टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन? देखिए, फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनते हैं. तो जाइगोट जो होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ओके, तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक जाइगोट के बारे में और एक एम्ब्रॉय के बारे में. जब जाइगोट डेवलप, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट हैप्लॉइड गैमेट से बनता है एक डिप्लॉइड जाइगोट. 2 हैप्लॉइड गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और ये सिंगल सेल होता है. और जब जाइगोट डेवलप होता है तो आगे जाके एम्ब्रॉय बनाता है, और एम्ब्रॉय बनने की प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रॉयजेनेसिस. ये सिंगल सेल होता है, जबकि एम्ब्रॉय मोर देन 1 सेल होता है. डिप्लॉइड सेल्स जो एक से ज़्यादा सेल का होता है, और ये आगे जाके नए ऑर्गेनिज्म बनाता है. आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म इसी से बनता है, एम्ब्रॉयजेनेसिस. तो हम लेते हैं पहला टॉपिक, जाइगोट. ओके,
देखिए, जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है और वो किस एनवायरनमेंट के अंदर फ्यूज़ हो रहा है। मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन किस एनवायरनमेंट में हो रहा है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली बात, आपको पता ही है कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो डिप्लॉइड, दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज़ होकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट हमेशा सिंगल सेल, हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंगल सेल से ही रिप्रोड्यूस्ड हुआ है, सिंगल सेल ही आगे जाके मिटोसिस डिवीज़न करके एम्ब्रॉय बनाती है। ओके, तो डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स। ओके, it ensure the continuity of species between organism of one generation to the next generation। आपको पता ही है जाइगोट के अंदर मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम का सेट जाता है, तो ये आगे से आगे हेरिडिटी को पास करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाती है और इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। ओके, तो जाइगोट हमेशा सिंगल सेल होते हैं, याद रखिएगा। जाइगोट के डेवलपमेंट, जाइगोट के जो सिंगल सेल होता है उसमें सेल डिवीज़न होता है, तब एम्ब्रॉय बनता है। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस और एल्गी अगर हम लेते हैं तो इनके जाइगोट के ऊपर जर्मिनेशन से पहले ये रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं, एक थिक वॉल होता है जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, और फेवरेबल कंडीशन में ये फट जाता है थिक वॉल और वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। इनकी फेवरेबल कंडीशन में जो फंजाई और एल्गी है, फेवरेबल कंडीशन में ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में एक थिक वॉल से इन जाइगोट के चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है जो कि इसको प्रिवेंट करती है डैमेज होने से और नष्ट होने से, हैरास वेदर या फिर हीट एंड टेम्परेचर से इसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो जाइगोट जो होता है फंगस और एल्गी का, वो प्रोटेक्टेड रहता है एक थिक वॉल से। नाउ वी आर ऑन एम्ब्रॉयजेनेसिस। एम्ब्रॉयजेनेसिस में देखिए एक और बात बता दूं, द चेंजेस विच टेक प्लेस इन जाइगोट, जाइगोट में होने वाले जो भी चेंजेस हैं दैट विल डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये दो टाइप के होते हैं, जो हायर प्लांट और हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर प्लांट हायर एनिमल, उनमें मिटोसिस डिवीज़न होता है और जाइगोट में, और मिटोसिस डिवीज़न से पूरे के पूरे एनिमल की पूरी बॉडी फॉर्म होती है। जबकि चूँकि जाइगोट डिप्लॉइड होता है तो डिप्लॉइड से मिटोसिस डिवीज़न द्वारा पूरी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। वेयर इज इन फंजाई एंड एल्गी में जो जाइगोट होता है उनमें मियोसिस डिवीज़न से बनते हैं, जो इसमें उनकी जाइगोट और फंगस की बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो मियोसिस डिवीज़न होता है उनमें, तो ये एक याद रखिएगा। नाउ वी आर ऑन एम्ब्रॉयजेनेसिस। एम्ब्रॉयजेनेसिस का मतलब ही है जाइगोट का डेवलपमेंट। ओके, तो जाइगोट डेवलप एंड फॉर्म एम्ब्रॉय, दैट प्रोसेस इज नॉन एज एम्ब्रॉयजेनेसिस। एम्ब्रॉय में मोर देन वन सेल होते हैं, मोर देन वन डिप्लॉइड सेल होते हैं, जबकि ये सिंगल सेल का होता है। ओके, तो सम प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन एम्ब्रॉयजेनेसिस वो हम डिस्कस करते हैं। दे आर टू प्रोसेस जो एम्ब्रॉयजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, एक सेल डिवीज़न और एक सेल डिफ्रेंसिएशन। देखिए, सेल डिवीज़न से नंबर्स ऑफ सेल बढ़ते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। वेयर एज सेल डिफ्रेंसिएशन से, तो सेल डिफ्रेंसिएशन से हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, स्पेशल टाइप के टिश्यूज़, ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के फॉर्मेशन में। तो दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक सेल डिवीज़न जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जबकि सेल डिफ्रेंशिएशन में स्पेशल टाइप की टिश्यूज़ या ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं। ओके, एम्ब्रॉयजेनेसिस एनिमल्स में अगर देखें तो दो कैटेगरी, एम्ब्रॉयजेनेसिस के बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ओविविपैरस और एक विविपैरस। ओविविपैरस दोज ऑर्गेनिज्म विच ले एग, वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, दे आर नॉन एज ओविविपैरस। तो ओविपैरस जो अंडे देते हैं, विविपैरस जो बच्चे देते हैं। ओके, तो animal which develop the zygote which is developed into young ones
inside the female body is known as viviparous. An animal जिसका जाइगोट बॉडी के आउटसाइड, फीमेल बॉडी के आउटसाइड एग में कन्वर्ट होता है, दैट इज नॉन एज ओविपारस, सॉरी। तो ओविपारस, द एनिमल इन विच डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड ओविपारस। इसमें एग दोनों तरीके के होते हैं, बॉडी के अंदर भी एग फर्टिलाइज्ड होता है कुछ में, और कुछ में बॉडी के बाहर एग फर्टिलाइज्ड होता है। ओके, तो जिनमें बॉडी के अंदर, तो जैसे फ्रॉग एग्जाम्पल है, फ्रॉग एंड फिशेस जो हैं, ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो इनके एग जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी मीडियम के अंदर, जैसे वाटर के अंदर फर्टिलाइज्ड होते हैं। वेयर एज फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो रेप्टाइल्स और एव्स देते हैं, और ये फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं एक सेल, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक सेल होता है चारों तरफ, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ सेल विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसको प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, देखिए दोनों में सर्वाइवल पीरियड में विविपैरस की सर्वाइवल पीरियड बहुत ज़्यादा होती है इन चांसेस टू ओविपैरस। ओविपैरस को शिकारियों का खतरा रहता है, वेयर एज विविपैरस को शिकारियों का खतरा नहीं होता है। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इन ग्रेटर इन दीज एनिमल ड्यू टू प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। इनको केयर एंड प्रोटेक्शन मिलता है, वेयर दे डू नॉट गेट दीज चांसेस। ओके, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो इनकम्बेशन पीरियड में जाते हैं, और इनकम्बेशन पीरियड के बाद हैच होते हैं, और हैच होने के बाद यंग वंस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एग। नाउ अपने पास है एम्ब्रॉयजेनेसिस में, अभी हमने एनिमल का किया, अब हम ले रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से होता है, देखिए फ्लावरिंग प्लांट में आपको पता ही है, देखिए फ्लावरिंग प्लांट में ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जो एग होता है, ये एग फर्टिलाइज्ड होता है और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। जब जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बनाता है, ये जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ है ये सीड बनाता है, और ये पूरा का पूरा ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के फ्लैशी पार्ट में, और इसके ये बाहर का पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट में, और ये कन्वर्ट हो जाता है पेरिकार्प में, फ्रूट के बाहर का वॉल। ओके, पेरिकार्प में। और जब ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो सेपल, पेटल, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, ये झड़ जाते हैं। ओके, तो इनमें फर्टिलाइज्ड इनसाइड होता है, तो जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ऑल द पार्ट ऑफ फ्लावर्स लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन सिर्फ पिस्टिल को छोड़ के फॉल ऑफ हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, बट इन सम प्लांट लाइक टमेटो एंड ब्रिंजल, सेपल जो होते हैं वो अटैच रहते हैं फ्रूट्स के साथ। In ovule, the zygote divides several times and form embryo, and that is known as embryogenesis. Okay. तो the wall of the, जो wall है, ठीक है, the wall of the ovule become hard. ये ovule की wall hard हो जाती है ये, और शीट को प्रोटेक्ट करती है, शीट के चारों तरफ ये कन्वर्ट, एंड द वॉल ऑफ ओवरी ये फूलना शुरू हो जाती हैं। ओके, एंड डेवलप इनटू द fruit, ovary develop into the fruit, a thick wall that cover the fruit is known as pericarp, मैं अभी जस्ट बता चुकी हूँ। एंड ये इसका काम क्या है, give the protection to the seed, seed को प्रोटेक्शन देने में, ताकि वो फेवरेबल कंडीशन में डिस्पर्स हो सके और जर्मिनेट हो सके। तो सीड मैच्योर होता है, डिस्पर्स होता है फेवरेबल कंडीशन में, और जर्मिनेट होके नया प्लांट बनाता है। ये है हमारे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो हमने आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जो दो प्रोसेस होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रॉयजेनेसिस, वो पढ़ा। जाइगोट सिंगल सेल होता है, डेप्लॉइड होता है, जबकि एम्ब्रॉयजेनेसिस डेप्लॉइड और मोर देन वन सेल का बना होता है, ये आपने पढ़ा। और उस प्रोसेस को जाइगोट से एम्ब्रॉय बनने की प्रोसेस को एम्ब्रॉयजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रॉय के अंदर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रॉय को आगे डेवलप करने के हिसाब से, एम्ब्रॉय देने के हिसाब से दो तरीके के हैं।
एम्ब्रॉयजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस वो जो अंडे देते हैं और विविपेरस वो जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओविपेरस में भी हमने पढ़ा एग बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइज्ड होती है और बॉडी के आउटसाइड भी फर्टिलाइज्ड होती है, लेकिन इनकी सर्वाइवल पीरियड जो होती है वो कम होती है रैदर देन विविपेरस। विविपेरस चूँकि फीमेल बॉडी के अंदर उनको प्रोटेक्ट करके और डेवलप होने तक रखा जाता है, तो उनकी केयर और प्रोटेक्शन अच्छी होती है देन विविपेरस। फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा देन ओव्यूल इज कन्वर्ट इनटू द हार्ड पार्ट ऑफ द सीड एंड एग इज फर्टिलाइज्ड एग सीड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो ओवरी होती है वो फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट और उसके ऊपर का पेरिकार्प बनाती है। ओके, और फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट होते हैं। ओके, तो आज हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा। ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब अगली वीडियो में हम नया चैप्टर लेंगे और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है और नए चैप्टर के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।